آپ کا میزبان گلزار احمد گنائی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ملاقات پروگرام میں ہم مختلف افسران یا مختلف شخصیات کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کی آراء آپ تک پہنچاتے ہیں, اور جو اسکیمیں ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں یا جو ڈیولپمنٹل کام ہوتے ہیں ان کو آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ بھی مطمئن ہو جائیں. آج کے پروگرام کے جو مہمان ہیں ہمارے وہ ہلال احمد شاہ صاحب, یہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہے اور چیئرمین بھی ہے میونسپل کونسل اننت ناگ کے. آپ کا خیر مقدم ہے ہلال صاحب. سب سے پہلے میرا جو سوال ہے آپ سے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اننت ناگ ٹاؤن کو دیدہ زیب بنانے کے لیے میری ہر ممکن کوشش رہے گی, لیکن ابھی تک جو دیکھنے کو مل رہا ہے, ابھی مطلب بس اڈے کی حالت دیکھیے یا کے پی روڈ کی حالت دیکھیے, کہیں پہ ایسا نہیں نظر آ رہا ہے. شکریہ گلزار صاحب. دیکھیے ہمارے ٹائم میں 3 سال لگ بھگ ہمیں یہاں پر ہو گئے الیکٹڈ باڈی میونسپل کونسل اننت ناگ کو. یہ کہنا کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا, مجھے لگتا ہے یہ سراسر ناانصافی ہے ایسا بولنا. جب ہم آئے آپ کو یاد ہوگا پورے شہر میں لال چوک کے بیچوں بیچ, اچھبل اڈا میں, یہ اپنے سپورٹر اسٹیڈیم کے پاس, پھر ہمارا اشے جی پورہ جو برج ہے وہاں, اور کے پی روڈ پہ کم سے کم 5 جگہ پہ گاربیج کلیکشن پوائنٹس ہوا کرتے تھے. جو جس میں بالخصوص جو وومنز کالج بخشی آباد کے پاس بھی تھا, اور سارے امپورٹنٹ لوکیشن جو میں نے آپ کو کہا. سب سے بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ جو سینیٹیشن کو لے کے, صفائی آدھا ایمان ہے, میرا پرائمری کنسرن رہا سینیٹیشن, صفائی کو لے کے. اس میں سے سب سے پہلے ہم نے یہ سارے گاربیج کلیکشنز ہٹائے, اس کے ساتھ ساتھ ہوپرز ہم نے خریدے, اور پورے ہوپر سروس شہر کے 25 کے 25 وارڈوں میں اس وقت جاری ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہو رہا ہے, مگر 100% ہم نے بن فری اننت ناگ کو کیا. صاحب میں آپ کو ٹوکوں گا نہیں, آپ جواب دیجئے لیکن ٹو دی پوائنٹ, کیونکہ پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ مختصر ہوتا ہے. تو یہ جو بس اڈے کی مطلب حالت ہوئی ہے, جو وہاں پہ وہ پارٹیشن اس میں تقسیم ہوا ہے, جس پہ ابھی بھی سوالات ہوئے, ٹھیکیداران کو پیسے نہیں مل رہا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ کافی جنکشن ہوا ہے, اس کی جو عظمت رفتہ ہے وہ بحال نہیں ہوئی بلکہ بجائے بگڑ گئی ہے؟ کیا میں آپ سے یہ سوال پوچھوں؟ پہلے آپ ایمانداری سے اپنے پروگرام میں آپ جواب دیجئے. بالکل. آج ایسا بھی کرتے ہیں. آپ پارٹیشننگ سے پہلے اس بس اڈے سے گزرتے تھے. بالکل. اپنے دینی ایمان سے بتائیے کہ کتنا ٹائم آپ کو لگتا تھا بس اڈا کراس کرنے میں؟ اتنا ٹائم نہیں لگتا, لیکن جتنا آج لگ رہا ہے. یہ چلو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کا سوچ ہے, لیکن اگر آپ آج کے دن میں اگر آپ میرے ساتھ بھی چلیں گے, مجھے لگتا ہے کہ آپ 2 منٹ میں ہی بس اسٹینڈ کو 1 منٹ میں ہی کراس کرتے ہیں. پہلے بس اڈا جو تھا وہ حفاظت مینر میں تھا, جس کو جو مرضی جہاں گاڑی ہوتا تھا وہ گاڑی رکھتا تھا. ریزن وہی ہوتا تھا جامنگ میں. آپ گلزار صاحب یاد کیجئے, آپ کے پی روڈ سے آگے اسی ایریا میں رہتے ہیں. آپ کے پی روڈ پہ وہ جو بس اڈے کے دونوں انر اور آؤٹ پہ جو جام رہتا تھا, رات کے 8-8 9-9 بجے تک لوگ سڑکوں پہ کھنبل چوک تک ڈابنگل تک جام ہوا کرتا تھا. وہ جام ختم اس لیے ہوا جب بڑے کو جنرل اسٹینڈ بس اسٹینڈ میں 45 فٹ روڈ وائڈ جس کو خالی رکھا گیا, وہاں پر اڈے میں جو بس اڈے میں تھا, جس کو جہاں مرضی ہوتی تھی, بس ادھر, ٹاٹا گاڑی ادھر, سومو ادھر, وہ ادھر, ان کو پراپرلی طریقے سے دیکھیے. یہ ایک فیصلہ میونسپلٹی کا نہیں ہوتا ایسے ہے. آپ نے پراپرلی طریقے سے ان کو سب کو بٹھایا, بہت اچھی بات ہے. لیکن اب جو ریڑے والے بھی وہاں پہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ تو نہ اندر جا سکتے نہ باہر تو آپ کے جو ملازم ہیں ان کو ستاتے ہیں, تو ان کی وجہ سے بھی کافی جنکشن ہوتا ہے. دیکھیے پہلے آپ دیکھ لیجئے, یاد کیجئے, آپ نے ایک یہاں پر بات کی کہ اس سے زیادہ ٹائم لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ بہت ٹائم سے بس اسٹینڈ سے نہیں گئے ہیں, اس لیے آپ یہ بول رہے ہیں. تو آج آپ یقین اپنے آپ سے پوچھیں, ایمانداری یہ ہے کہ یہ آپ نہیں, پورے جو بھی لوگ سن رہے ہیں, 10 لاکھ 20 لاکھ جتنا بھی آپ کا ویورشپ ہے, جو بھی لوگ سنیں گے, وہ اس بات کے خود وٹنس ہے کہ پارٹیشننگ سے پہلے ان کو آدھا گھنٹہ, جبکہ لوگ آتے بھی نہیں تھے. دیکھیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ میٹرنیٹی چائلڈ کیئر ہاسپٹل ہے, اس ایریا کے سارے لوگوں کو بس اڈے سے ہی آنا ہوتا ہے یہاں پہ. تو ہمارا مقصد تھا کہ جتنا وہ سفر ہے آدھے منٹ کا 1 منٹ کا, اتنا ہی اس میں لگے. وہی آج لگ رہا ہے. جہاں پر آپ نے وینڈنگ اسٹریٹ وینڈرز کی بات کی, پراپر وینڈنگ مارکیٹ ہے, مجھے نہیں لگتا ہے 45 فٹ میں آپ کو کہیں پر آج کی ڈیٹ میں ایک ریڑا نظر آ رہا ہے. وہ سارے اندر ہے. بہت اچھا سٹیپ اٹھایا تھا آپ نے کہ یہاں پہ ٹریفک جام ہوتا ہے, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ 20 فٹ میں آپ کونز لگا رہے ہیں, کیونکہ فٹ پاتھ بند ہے, دکانداروں نے ان پہ پہلے ہی قبضہ کیا ہوا ہے, اور راہگیر جو اب راہگیر چلیں گے, گاڑیاں چلیں گی تو کیا ہوگا, ریڑا والا چلے گا. دیکھیے پہلے آپ کو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ پورا ایک جواب دوں گا اسٹارٹ کرنے سے پہلے. بس اسٹینڈ کی جہاں پر آپ نے بات کی, وہ اس کو آپ کے اعتبار سے وہ ٹھیک لگتا ہے, تو آنے والا وقت ہی طے کر سکتا ہے کہ آپ کی بات
कहाँ तक सही है? बिल्कुल, मेरा मानना उसमें ये है, और जो एक हकीकत है उसको बनाने के लिए शहर का आपके पास टाइम कम है। जो शहर हमारा इस वक्त सबसे बेहतरीन सिटी मानी जाती है चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ पैटर्न पे चंडीगढ़ में जो बस अड़ा है वो पूरा प्लेन है, वहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं है। अगली ही मैंने पिछले ही दिनों एक प्रोग्राम देखा, इतना साफ सुथरा चंडीगढ़ का बस अड़ा है कि वहाँ पे नीचे खाना खा सकता है। आप वही अगर आपने देखा होगा तो मुझे लगता है कि वो और इसमें आपको फ़र्क नज़र नहीं आई होगी, क्योंकि यही पार्टीशनिंग उन्होंने भी बस पे, अगर आप वाकई गए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, इसी तरीके से चंडीगढ़ में पार्टीशनिंग की गई है और अलग अलग तरीके से अलग अलग गाड़ियों को रखा है। खैर उस पर मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, वो देखने वाले खुद उसके विटनेस है कि असल में ज़मीनी सतह पे वहाँ पर कैसे जो चंडीगढ़ गए वो तो लोग ही जज करेंगे। हाँ, रही बात अब 20 फुट वाइड या 20 फुट, सबसे पहले तो कोई रोड है नहीं जिसमें हमने कोनस लगाए। सबसे एक हमने कहाँ से लगाए, लाल चौक से रहदेदी मस्जिद तक कितना वाइड रोड है, कम से कम 40 फुट। उसके बाद कहाँ पर हमने कोनस लगाए, हमने मेहंदी कदल से शुरू किया अप टू डांगरपोरा। मिनिमम विड्थ जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज 26 फीट, और मैक्सिमम आपको 40 फुट भी मिल रही है, बट जो नैरो है जो मिनिमम 26 फीट। 26 फीट में आपने बीच में पार्टीशन किया, कोनस ट्रैफिक कोनस लगाए। उससे पहले क्या होता था, शायद अगर आप पर एक चीज के विटनेस नहीं है, चलो मैं बताता हूँ। कहा ये बहुत अच्छा सेटअप है सर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि पॉलिसी में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पहले फुटपाथ क्लियर करनी थी ताकि राहगीरों के लिए राह हमवार हो जाए? मुझे लगता है कोर्ट रोड पर पहले ही फुटपाथ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। उनको उन सबको जो मटिनाडे में आलो वेंडिंग मार्केट बना हुआ है, सब ने हमने उनको शिफ्ट किया। आपने ये जो कोर्ट रोड है यहाँ पे ये कॉर्नर्स लगाई, आप निकल लिए बाहर और वहाँ से ही फुटपाथ पूरा बंद है। देखिए वही मैं आपको कह रहा हूँ, हमारी कोशिश है, हम फाइन भी करते हैं, हमने कई सारा सामान भी फुटपाथों से उठाया हुआ है। ये तो आपके वसादत से लोगों से मेरी गुजारिश है, आप भी कोऑपरेट कीजिए। देखिए हमारा मानना यह है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और म्यूनसिपलिटी का, सड़क है गाड़ियों के चलने के लिए, फुटपाथ है लोगों के चलने के लिए। ऐसे कुछ लोग जो सड़कों पे गाड़ियां रखते हैं, नो पार्किंग जोन ऑलरेडी डीसी साहब ने, डॉक्टर पीयूष सिंगला ने किया हुआ है, मेहंदी कदल, जंगलात मंडी, बाकी एरियाज भी। तो जो भी अच्छा पहले पार्किंग की प्रॉब्लम हुआ करती थी, मेहंदी कदल में आपको एसआरटीसी और वजीर बाग के पास कम से कम 250 गाड़ियों की पार्किंग अवेलेबल है। जंगलात मंडी में हमने मल्टी लेवल कार पार्किंग खोली, वहाँ पर 270 गाड़ियाँ आती है। इस एरिया में हमारे पास रानी बाग, वजीर बाग के पास रानी बाग में वहाँ पर पार्किंग है। लोगों से गुजारिश है कि आप सड़कों को गाड़ियाँ मत रखें, पार्किंग में रखें, फिर आपको ऑप्शनल काम है, कोर्ट में जाना है, शॉपिंग करनी है। ऐसा मानना है कि दुकानदार आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो फुटपाथ है उन्हीं के कब्जे में है? बिल्कुल सही बात है, 100% अगर वो कोऑपरेट करते होंगे दुकानदार, शॉपकीपर हजरात, हालांकि मैं ट्रेडर्स का मशकूर हूं, जब वो मीटिंग करते वो बोलते हैं सबके लिए, क्या दुकानदारों के लिए कानून नहीं? सबके लिए है, क्यों नहीं है? फिर उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन होती है, क्यों नहीं होती है? आप अभी भी जाइए बाहर, हम आपको दिखाएंगे कितना सामान हमने फुटपाथ से उठा के, वो अभी भी चीज है जो हमने कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर कोर्ट चालान किया हुआ है, हमने तो रिलीज नहीं किया। हम आपकी वसादत से फिर बोलेंगे, जो फिर वायलेशन करेगा उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। एक बहुत बड़ा मसला है जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से, परमिशन के हवाले से आपके बारे में कहा जाता है, पहले जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है फिर आप एक्शन करते हो, तो एक्शन के बाद 4 या 5 दिन काम रुकता है, लेकिन 6 दिन के बाद फिर काम शुरू हो जाता है, ऐसा क्या है? पहले मैं आपको उस वाले सवाल को क्लोज करूं, आप मानते हो कि ये कोनस लगाना, ट्रैफिक को लगाना सही बात है, मैं कह रहा हूं, लेकिन इसमें एक पॉलिसी होनी चाहिए, पहले फुटपाथ क्लियर होने चाहिए और उसके बाद, क्योंकि राहगीरों के लिए जब राह हमवार होगी तभी तो गाड़ियां निकल सकती। बिल्कुल वही हमारा स्टेप है, और इसमें आपके जरिए हम लोगों से भी मेरी गुजारिश है, वो कोऑपरेट करे। प्लस अगर कोई सजेशंस है उसको वेलकम मैं करता हूं, वो मेरे पास आए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए, पुलिस के पास आए, क्योंकि जॉइंट फैसला है। अगर आपकी कोई सजेशन है उसको लिया जाएगा ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए। जी, तो इस सवाल का कंस्ट्रक्शन परमिशन के हवाले से देखिए, सवाल किया, पहले दिन से मैंने लोगों से गुजारिश की यहाँ पे कि बाज़ाब्ता तौर आप आइए, तब तक बोका हुआ करते थे, एनओसी लाइए और परमिशन लीजिए। आज ऑनलाइन है, ये देखिए आप कैमरा, अगर मैं गुजारिश करूँगा आपके कैमरामैन से वो यहाँ घुमाए, ये मैंने ऊपर लगाया हुआ है ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन। प्लस नीचे आप देखिए एलजी साहब का खुद उन्होंने कहा कि 21 दिन के अंदर अंदर आपको परमिशन मिलेगा। उन सारे लोगों से मेरी गुजारिश है, जो भी ये इलीगल या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। और अगर ऐसा कहीं ज़मीनी सतह पे फील्ड स्टाफ से, एक पिछली बार हमारी नॉलेज में आया था फील्ड स्टाफ में, तो हमारे यहाँ पर सीओ साहब ने एक हमारा जो भी इंचार्ज उसका था उसको सस्पेंड किया गया था। अगर म्युनिसिपलिटी, मेरे सामने भी आपने 1-2 एक्शंस की है, एक मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एक को दी थी आपने 3000
74 स्क्वायर फुट शायद, मुझे याद है अभी। तो और दूसरे दिन और एक बिल्डिंग में आपने कार्रवाई की, उसका एक पिलर की, लेकिन आज फिर काम चल। अगर ऐसा है, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने मेरी नॉलेज में लाया। अगर ऐसा है एक्शन होगा। देखिए मैं खुद भी, हालांकि फील्ड स्टाफ का काम है, मगर फिर भी जब भी जहाँ भी मेरी नॉलेज में जाता है, कई सारे हमने इलीगल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन उसको डिमोलिश किया। आपने मेरी नॉलेज में लाया, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, और एक्शन होगा, क्यों नहीं। जलाल साहब, आप तो एक सियासी लीडर भी है, और क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं है सब लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ काम आपने अच्छे भी किए हैं, लेकिन कुछ के लिए आपको कुछ सुनना भी पड़ा। तो एज ए पॉलिटिकल लीडर आप क्या कहना चाहेंगे अभी, क्योंकि आप चेयरमैन की कुर्सी पे? देखिए मैं सबसे पहले लोगों का मशकूर हूँ, बिलखुसूस जो शहर अनंतनाग है, यहाँ पर बड़े ज़िशूर लोग रहते हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ इस कुर्सी पर पहुँचाया खिदमत करने के लिए। मेरा एक ही उनसे ये वादा है, मैं आपकी खिदमत करने के लिए आया हूँ, और मेरी कोशिश है, अब आपके पास टाइम कम है, कभी टाइम निकाल के आइए, मैं आपको बताऊंगा कि शहर में हमने कौन कौन से प्रोग्राम्स किए अभी तक, कितना डेवलपमेंट किया, जो आपने कहा टाइम नहीं है। तो एक कभी आइए, 10 मिनट की जगह इसको 20 मिनट प्रोग्राम बना के आइए, उसमें 10 मिनट मुझे पहले बोलने दीजिए कि अभी तक शहर में हमने क्या किया और आगे क्या होने वाला है। आप देखिए लाल चौक में घंटा घर को लेके बहुत लोग बोलते थे नहीं बनेगा नहीं बनेगा, अलॉट भी हुआ, टर्नर आउट भी हुआ, आप देखिए कुछ दिनों में उसमें काम भी शुरू होगा। बहुत ऐसे इकदाम हैं। मैं, आपके पास टाइम कम है, जो आपने रिस्ट्रिक्ट किया मुझे, मेरा एक ही है कि मैं आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। इस शहर को, जो मेरा ख्वाब था कि इसको एक मॉडर्न सिटी बनाया जाए, खूबसूरत शहर बनाया जाए, इंशाअल्लाह ताला उसी पर हम चल रहे हैं। और आप देखिए आने वाले वक्त में आप इस चीज़ को लगभग 30% आपने विटनेस किया, आने वाले वक्त में आप 100% ये बता सकते हैं, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से या परमिशन के हवाले से कितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स के एनओसी ज़रूरत होती है परमिशन के? बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा मामला है, आपको कहीं किसी एप्लीकेंट को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसमें होता है मेंबर तहसीलदार अनंतनाग, हमारा मतलब तहसीलदार है, मटन एरिया में होगा उधर किरीबल, उसका मटन वो तहसीलदार है, मीनस तहसीलदार, देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDD, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE, और टाउन प्लानिंग ATP श्रीनगर, टाउन प्लानिंग श्रीनगर। ये 5 मेंबर जब NOC आती है, फिर वो मेरे पास एज चेयरमैन बोका अप्रूवल के लिए आती है, जिनकी तरफ से भी NOC आती है, उन सबको परमिशन बाज़ाब्ता तौर ऑनलाइन हमने आज तक हमारे पास इसी के करीब एप्लीकेंट्स ने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है। कई लोग पाइपलाइन में है, कई लोगों को परमिशन मिला है ऑनलाइन, घर पर ही वो उनको परमिशन भी वो निकालते हैं और फी भी वहाँ से भरते हैं। जलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा काम है सवाल करना, तो वो तो हम आइंदा भी करते रहेंगे आपसे, लेकिन आपने खुले दिल से, खुले जहन से जवाब दिया। बहरहाल ये तो मैसेज है एक, ये चेयरमैन है म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के हिलाल अहमद शाह साहब, जो बता रहे हैं कि मैं टाउन को दीदा ज़ेब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे लोगों का सपोर्ट चाहिए। बहरहाल जो हमारे पास भी सवालात आते हैं, हम अफसरान तक या ऐसे लोगों तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, ताकि हम जो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं एज ए मीडिया पर्सन, हम उसमें पूरा उतरे। बहरहाल अपना तो काम है जलाते रहे चिराग, रस्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। अपने मेज़बान गुलजार अहमद गनाई को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।